So very good morning to all of you. So today we are going to cover indices, surds and logarithms. Now these both the topics that we are going to take up fundamentally is a formula based topic. So we are going to really got to remember some of those formulas and there are a few types of questions that we are going to do. So what are indices and surds? Indices is basically a plural form of index. So what is an index? Index is, let us say we have something to the power, right? This is known as index. And this is known as base. So how do you get this index? When basically A is being multiplied m times, right? M times. So you write A ki power m. So base is an index. So there are certain characteristics and properties that we are expected to remember, right? So that is what we are going to discuss. So there are certain properties which says when the bases are equal, power can be added. That means if you have A ki power m into A ki power n, that means we know the bases are same, so powers can be added. So what it's trying to say, let us say we have 2 ki power 3 multiplied by 2 ki power 4, right? So one way of doing this is first we solve 2 cube 8 and 2 ki power 4 16 and then we multiply, or I may want to simply do 2 ki power 7. You will see that the answers are same. So when the bases are equal, powers can be added. That is what you have to understand here. Right. Similarly, if you have A ki power m divided by A ki power n, so this can be basically written as A ki power m minus n. Or in other words, if I am saying 2 ki power 5 divided by 2 ki power 3, so of course you can cancel this out, you'll get 2 ki power 2, right? Or you may want to, simply write this as 2 ki power 5 minus 3. So when something is being divided, you simply, find out the difference of these two, right? Similarly, if you have A ki power m whole ki power n, that means you can always multiply the powers. In other words, if you have 2 ki power 3 whole ki power 2, the answer is same as 2 ki power 6. That means you can solve 2 into 2 cube is 8 and 8 square is 64. So 2 ki power 6 is 64. This is certainly difference from, A की power m whole की power n. ये मैंने चैप्टर करा दिया शायद. कब कराया था ये? उस दिन कराया था ना? हाँ, okay. So we have done this chapter, right? So we are going to leave this and we are going to continue with the logs. ठीक है, ये हो गया था ये वाला चैप्टर. तो अभी तक कोई बोल नहीं रहा था. जब मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ लॉग नहीं हुआ, मैं कहूँ यार ये क्या, ये फीलिंग सी क्यों आ रही है? ये तो करा करा सा लिखा लिखा सा लग रहा है. So I think we are through with this. Okay, so we had done this actually earlier. So let's go with the logs. So let's start with understanding of logarithms. So
what is a log? Let's say, you know, we have something like log of 1000 to the base 10 is 3. Basically, it is 10 cube is 1000. ठीक है, so log of any number is nothing but a representation of the number in terms of power. जो भी अभी हम इंडेक्स कर रहे थे ना, मतलब लॉग क्या है, किसी भी चीज का लॉग क्या है? लॉग ये है किसी भी नंबर को किसी भी नंबर की पावर में लिखना. Another way of writing this exponential is nothing but log. Let us say, you know, let's say you have, you know, a की power x is n. Anything, n is some number. So what we can say is log of n, ठीक है, base a is x. That means you see a की power x is my log. A की power x is my log. Right now, and anything to the power x, basically a is being multiplied n times. समझ में आ रहा है? A is being multiplied n times and you're getting this answer. Now x can be negative. This is, base is always a positive quantity. It can be a fraction, but base is always a positive quantity. So if you take a positive quantity to power of anything, let's say a is a positive value, you take a to the power of anything, कुछ भी पावर करोगे तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ सकता है क्या? एवर वो हमेशा पॉजिटिव आएगा. इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा. मान लेते हैं ए पॉजिटिव है, मैंने पावर हाफ कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या नेगेटिव आ सकता है? ये भी पॉजिटिव ही आएगा ना. This is 1 by a square, that's all. 1 by root. Basically, this is the value. Right. So anything, let's say, you know, a की power minus 3. Once again, it is a cube. And therefore, this result, anything to the power of something, whatever you get, so something to the power of something n, you can never have n as negative. Since a is positive, n cannot be negative. समझ में आ रहा है? जो बेस है, जैसे बेस नंबर सिस्टम में हमने किया था काउंटिंग, जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 4, क्योंकि वो हम पर्टिकुलर बेस यूज करते हैं. तो इसमें भी लॉग में जब हम बेस यूज करते हैं तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है. इट हैज टू बी समथिंग, फ्रैक्शन और पॉजिटिव नंबर और व्हाटएवर, इट कुड बी एनीथिंग, बट इट इज नॉट अ नेगेटिव नंबर. तो जब हम किसी भी पॉजिटिव एंटिटी के ऊपर कुछ भी पावर डालें, पावर कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, व्हाटएवर, फ्रैक्शन, इंटीजर, the result can never be negative. That means if x cannot be negative, in another words, log of negative is not defined. Log of negative quantity is not defined. In fact, log of 0 cannot be also defined. Why? Because any positive quantity to the power of anything, can it be ever 0? Unless it is 0 and we have some power, it cannot be 0. So log of negative or 0 is not defined. समझ में आ रहा है क्यों नहीं? Log of positive or 0 is not defined. If you also remember the previous class when we are doing graphs, हमने एक, वैसे तो कई सारे किए थे, बट जो फंडामेंटल ग्राफ किया था लॉग ऑफ एक्स, उस केस में हमने शायद ln था, उस केस में बेस ई वो था. इसका ग्राफ कैसे आ रहा था? ये 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा था. जैसे ही x की वैल्यू बढ़ रही थी ग्राफ ऐसे जा रहा था, और जैसे ही x की वैल्यू कम हो रही थी तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा. यही समझ में आ रहा है? x क्या है? ये log x था. हमारा जो फंक्शन था वो क्या था? y इज इक्वल टू log x. इनपुट वैल्यू क्या है मेरे पास ग्राफ बनाने के लिए? यहाँ x लेते हैं, यहाँ y लेते हैं.
तो जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे थे तो log x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 0। समझ में आ रहा है? जब log तो log 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। अब ये क्यों आ रही है 0? एक बार समझिए, किसी चीज की पॉजिटिव पावर, किसी चीज की पॉजिटिव पावर को हम 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा? 1। ये समझ में आ रहा है? तो log ऑफ 1 जो होगा वो क्या होगा? log ऑफ 1 जो होगा, ये बेस है पॉजिटिव नंबर, रिजल्ट क्या आना चाहिए इसका? 0। क्योंकि log की डेफिनेशन क्या थी? जैसे हमने log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x किया था, या मान लेते हैं ये पावर को हम 0 कर देते हैं, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 क्या बनेगा? 1। तो log ऑफ 1 क्या बनता है? 0। समझ में आ रहा है? log 1 की वैल्यू क्या बनेगी? 0। इसका लॉजिक है, क्यों? क्योंकि इसके पावर एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसलिए log 1 0 होता है। और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है log x की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से फ्रैक्शन के बीच में आती है log x की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है। कहने का मतलब है, मान लो x की वैल्यू आपने हाफ ले लिया, मान लेते हैं हमने log ऑफ x की वैल्यू या log ऑफ हाफ ले लिया मैंने, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा, क्योंकि y है ना, y इज इक्वल टू log x है। अगर मैंने x की वैल्यू मान लो हाफ ले लिया तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? log ऑफ हाफ, जो कि ग्राफिकली x की वैल्यू हाफ तो y की वैल्यू यहां कहीं आ रही है, मान लेते हैं ये ग्राफ है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है, ये y नेगेटिव चल रहा है, आ रही बात समझ? y नेगेटिव चल रहा है, इसका मतलब है जब log ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो log x का जो फंक्शन है या जो log x की वैल्यू है वो क्या रिजल्ट दे रहा है मेरे को? नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। और जैसे ही x की वैल्यू 1 से बड़ी होती जा रही है मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है? पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। समझ में आ रही बात? तो log ऑफ नेगेटिव क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि x देखो ग्राफ कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं जा रहा है, log x का जो ग्राफ है वो सिर्फ y एक्सिस के राइट हैंड साइड में से आ रहा है, यानी x कैन ओनली बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? y वो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, यानी रिजल्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, बट log ऑफ द इनपुट वैल्यू x जो है, log x जो है वो नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है, ग्राफ से समझ में आता है। ये बात समझ में आ रही है यहां तक बात? अब जो इसके ऊपर हमारे लिए जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हमें बेसिकली अब इसमें 2-3 टर्म्स हैं। नेचुरल लॉगरिथम मैंने पिछली क्लास में जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे मैंने कहा था जब बेस ई होता है तो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, ln लिख देते हैं, और जब बेस 10 होता है तो हम उसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। तो बाय एंड लार्ज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर इनटू इज बेसिकली बेस्ड ऑन कॉमन लॉगरिथम, यानी कि बेस 10, बट ऑफ कोर्स द बेस कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें जो चीज समझनी है वो समझनी इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे और जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में, इस चैप्टर में ये है कि हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता हो। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो हम इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a इंटू बी, मान लेते हैं, या सब किताब में mn है तो मैं m इंटू एन ले लेता हूँ। log ऑफ मान लेते हैं m n, यानी log ऑफ m इंटू एन, इसका वैल्यू बनेगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी मान लेते हैं अपने को log ऑफ 20 निकालना है, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट log ऑफ 2 इंटू 10 फॉर एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू बनेगी log ऑफ 2 की वैल्यू प्लस log ऑफ 10 की वैल्यू, इस तरीके से log। समझ में आ रही बात? ऐसे ही मान लेते हैं हमें निकालना जी, ये जैसे हमने अभी जो हम कर रहे थे सर्ट्स में जो प्रॉपर्टीज थी वही चीज इसके अंदर है। वैसे ही log ऑफ m बाई n क्या बनेगा? log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इसका मतलब मान लेते हैं अपने को log ऑफ 10/2 करना है या 5 करना है, तो हम इसको कर सकते हैं log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2, ये मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब सेम बेस है। मान लेते हैं 10 है तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। अगर 15 बेस है तो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। अगर यहाँ कुछ बेस है तो सेम बेस है, यानी कि बेस अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सेम बेस ही लेना पड़ेगा हमें लॉग, इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज में। देन लॉग ऑफ m की पावर n, तो ये बनेगा m
ये जो पावर है वो कहां चला जाएगा, n इंटू लॉग m। आ रही बात समझ में, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं मेरे पास log ऑफ m, 1 मिनट में समझाने के लिए बेस a है मान लेते हैं, और उसकी पावर n है। समझ में आ रहा है, क्या है, बेस की पावर n है, तो इसका आंसर बनेगा 1/n log ऑफ m बेस a। अगर कोई चीज पावर में है नॉर्मल, मान लेते हैं यहाँ पे ये बेस यूं का यूं है, तो m यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आके। अगर कोई चीज डिवाइड में, बेस की पावर में है, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रही बात। ऐसे ही मान लेते हैं मेरे पास ऐसा होता है log ऑफ m, मान लेते हैं बेस a है, ठीक है, इसकी पावर q है, p है, और इसकी पावर q है, तो क्या बन जाता है ये, p अपॉन q log m बेस a। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसके बाद एक बेस चेंज रूल होता है जिसको बोलते हैं हम log ऑफ m बेस a कैन बी रिटन एज 1/log a बेस m। समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे कि मान लेते हैं log ऑफ 2 बेस 10 है, हम इसको लिख सकते हैं 1/log 10 बेस 2, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक चीज और हो सकती है, मान लेते हैं log m बेस a है, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ m टू सम न्यू बेस, कुछ भी बेस नया मान लो, b बेस मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय log ऑफ a बेस b। यानी जो बेस था ना वो भी log हो सकता है, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ नया बेस, कॉमन बेस हो जाएगा, 10 भी मान लो। यानी log, मान लेते हैं मेरे पास log 10 बेस 2 है, I can write it as log 10 divided by log 2. What is the base? Could be any base, same base. ये बात सबको समझ में आती है। And of course, you know the value of 1. What is log 1? Log 1 is 0. ठीक है? Then you also have a की power log m base a can be written as m. समझ में आ रहा है? ये ऐसे है, मान लेते हैं मैंने कहा log m बेस a इज सेम एज log m बेस a, लिख सकते हैं। कैन आई से इसकी पावर मैं ये कर दूं तो अंदर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, जैसे हमने किया था log ऑफ 1000 बेस 10 इज इक्वल टू क्या है, 3 की जगह ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है, तो हम क्या कर सकते थे, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 करते थे। तो यहां पे a की पावर ये पूरा कर दूं तो m आना चाहिए। समझ में आ रहा है, 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, यानी 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। वैसे ही a की पावर में ये पूरा का पूरा सिस्टम कर दें, कौन सा सिस्टम, log m बेस a, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी m। तो इसका मतलब ये बेसिकली log a खत्म होके m इज इक्वल टू m आ जाता है। if you want to take an example, let's say if you have something like 3 की पावर log 50 बेस 3, आंसर क्या बनेगा, 50, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, एक और रिजल्ट है, a की पावर log b इज इक्वल टू b की पावर log a। से फॉर एग्जाम्पल आई अप्लाई log ऑन बोथ द साइड्स, मैं दोनों तरफ log अप्लाई करता हूं, तो ये क्या बनेगा, log करूंगा तो ये बनेगा log ऑफ a की पावर log b लिख सकता हूं, इज इक्वल टू log ऑफ b की पावर log a लिख सकता हूं। इट इज सेम एज सेइंग, मान लेते हैं 2³ इज इक्वल टू 8 फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कह सकता हूं ना log ऑफ 2³
इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8, चलेगा? वही चीज है। अब चूंकि ये पावर में हो गई तो जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से इसको मैं यहां लिख सकता हूं और इसको मैं यहां लिख सकता हूं। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा लॉग ऑफ बी इंटू में लॉग ऑफ ए इज सेम एज लॉग ऑफ ए इंटू में लॉग ऑफ बी, बनेगा ना? इसका मतलब ये वाली वैल्यू, क्योंकि लॉग ए इंटू लॉग बी सेम एज लॉग बी इंटू लॉग ए, उसी को ये यहाँ पावर में ले गया, इसको यहाँ पावर में ले गया और लॉग लॉग दोनों तरफ कैंसिल कर दिया। दोनों तरफ लॉग को कैंसिल करने का मतलब हम बोलते हैं एंटी लॉग लगाना। लॉग लॉग कैंसिल करने का क्या मतलब होता है? एंटी लॉग लगाना। अभी हम देखेंगे उसको कैसे लगाते हैं। ये समझ में आ रही बात? ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज पे आएंगे, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज याद नहीं हुई कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ये बता देता हूं। एक क्वेश्चन में, खासतौर पे कैट में, कोई भी लॉग पे क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 प्रॉपर्टी इकट्ठी लगेंगी। 3 से 4 प्रॉपर्टी इकट्ठी लगेंगी, ध्यान रखना। और कौन सी लगेंगी वो नहीं पता हमें, बट लगेंगी जरूर, वो इन्हीं में से लगेंगी। तो एक बार प्रॉपर्टी देख लो, एक बार सब लोग अपने आप पेंसिल से लिख लो अलग से, फिर इसमें 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर मैं इसकी एप्लीकेशंस बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ और काम में आएगा ये। हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आया ये प्रॉपर्टीज सभी लोगों को पहले? यस सर।
ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम देखते हैं, एक बार दो चार एग्जांपल्स करते हैं। हाँ जी, आर वी थ्रू विद दिस प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ अस? लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल 8.01, सिंपलीफाई log 315 plus log, अच्छा, अब देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यूज विच वी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। एटलीस्ट log 2 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। ठीक है, log 2 की वैल्यू 0.3010। और ऐसे ही हमें कहीं ना कहीं log 3 की भी वैल्यू अगर पता हो तो बढ़िया है। नॉर्मली इस टाइप की वैल्यूज अगर एग्जाम में आती हैं तो वो आपको बता देगा वैल्यू की, वो आपको आइडिया दे देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2। ठीक है, now let us look at this example one. It's saying simplify log of 315 plus 4 log 25 minus 6 log 9 minus 3 log 49। so simplify का यहाँ क्या मतलब है? उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी बेसिक प्राइम नंबर्स लॉग में आ जाए उसको लिखना है। तो करो इसको, कैसे करोगे 315 को? मान लेते हैं हमारे पास लॉग है, लॉग ऑफ 315 प्लस 4 log 25 माइनस 6 log 9 माइनस 3 log 49। बेस 10 की है ये वैल्यू, 0.3010 बेस 10 की वैल्यू है, log 2 बेस 10। हाँ जी, बनी बात। हाँ जी,
log 3 को छोड़ दो, बाकी सब निकाल लो, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो। 315 कितना बनेगा? 5 इंटू 63, 63 कितना बनेगा? 7 इंटू 9, 9 कितना बनेगा? 3 इंटू 3 प्लस 4 लॉग, ये बनेगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 लॉग 3 का स्क्वायर माइनस 3 लॉग 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 7 प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 9, यानी ऐसे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8 लॉग 5 बनेगा, कैसे? ये पावर में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर में है तो यहाँ पे माइनस 12 लॉग 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 लॉग 7 हो जाएगा। लॉग 5 प्लस लॉग 8, 8 लॉग 5 कितना हो जाएगा? 9 लॉग 5। समझ में आ रहा है कौन सा? ये वाला और ये वाला। अब 7 वाला बचा, माइनस 6 प्लस 1 कितना बन जाएगा? माइनस 5 लॉग 7। अब ये जो पावर में है, ये पावर हटा के यहाँ 2 लिख देता हूं, 2 लॉग 3 माइनस 12 लॉग 3, यही बनेगा। तो कितना बन जाएगा? माइनस 10 लॉग 3, तो माइनस 10 लॉग 3, तो ये बनना चाहिए, ठीक है। तो प्लस, तो बन जाएगा 9 लॉग 5 माइनस 5 लॉग 7 माइनस 10 लॉग 3। बेसिक प्रॉपर्टीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अगला वाला भी यही, ये वाला क्वेश्चन करो, सॉल्व फॉर। हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, लॉग ऑफ 20x बेस 10 इज इक्वल टू 4। क्या करोगे? बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है? फंडामेंटल फॉर्मूला, फंडामेंटल लॉगरिथम, बेस की पावर रिजल्ट विल गिव मी इंटरनल वैल्यू, यही है बेसिक लॉगरिथम की डेफिनेशन। तो कैन आई से 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 20x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500, ठीक है। अब हमें यहाँ अगला सॉल्व करना है, मान लेते हैं हमें सॉल्व करना है लॉग ऑफ 3x माइनस लॉग 6 माइनस लॉग 12 इज इक्वल टू लॉग 12, ठीक है। लॉग 3x माइनस लॉग 6 इज इक्वल टू लॉग 12। तो ये क्या कर सकते हैं, इन दोनों का क्या कर सकते हैं हम? डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? लॉग ऑफ 3x अपॉन 6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 12। एंटी लॉग दोनों तरफ लॉग लॉग खत्म हो जाएगा, x बाई 2 इज इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 24। आ रही बात सभी को समझ में? ठीक है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एक्सप्रेस करना है लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी की पावर 6 सी की पावर 4। आपको इसको लॉग ए बी सी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, करो। कई तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है।
a बाई बी है, तो हम ये भी कर सकते हैं log ऑफ अंडर रूट ऑफ a क्यूब माइनस ऑफ log ऑफ b की पावर 6 c की पावर 4 कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। log ऑफ अंडर रूट का मतलब है हाफ a क्यूब माइनस log ऑफ 6 प्लस log ऑफ c की पावर, ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, प्रोडक्ट है। अब चूंकि पावर है बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 log a माइनस 6, ये भी है माइनस 6 log b माइनस यहाँ आ जाएगा 4 log c, तो आ जाएगा a बाई बी प्लस। वंस अगेन इट इज यूजिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और इसकी एप्लीकेशन होती है। एक्चुअली लॉग हम पहले यूज किया करते, अगर आपको ध्यान हो, कैलकुलेशंस के लिए यूज करते थे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए। जब हमारे पास कैलकुलेटर या कंप्यूटर नहीं होता था तो हम लॉग्स यूज कर सकते थे। कैसे, मान लेते हैं 6 7 8 9 इंटू 5 4 3 2 डिवाइडेड बाय 5 7, मान लो इसको कैलकुलेट करना है तो हम लॉग यूज करते थे। तो पहले लॉग ऑफ दिस वैल्यू निकालते थे, जो आंसर आता था उसका एंटी लॉग निकालते थे। एंटी लॉग निकालने के लिए एक लॉग का टेबल होती थी, अपने पास एक किताब होती थी, उसमें वैल्यू होती थी, मान लेते हैं 0 4 5 6 7 8 वैल्यू है, तो हम ऐसे दो वैल्यू पकड़ लेते थे। 45 ऐसे 0 0 होता था, 0 1 0 2 ऐसे चलता था, फिर यहाँ पे 0 1 0 2 ऐसे चलता था, और फिर यहाँ पे एक मीन डिफरेंस लिखा हुआ होता था। तो 45 67 यानी 45 यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 5 मिलेगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 7 मिलेगा। तो ये रो ये कॉलम पकड़ के ये वाला वैल्यू उठा लेते थे, ठीक है। और जो 6 8 था उसके सामने मीन डिफरेंस का जो 8 की वैल्यू होती थी इसमें ऐड कर देते थे। ऐसा कुछ करते थे, कुछ याद आ रहा है? ऐसे लॉग निकालने का ये तरीका हुआ करता था वंस अपॉन ए टाइम। ऑफ कोर्स एग्जाम में हमसे कोई ऐसे वैल्यूज निकालने को तो नहीं ही कहेगा, लेकिन फिर भी इसके जो यूसेज है वो हमें पता होने चाहिए। कैसे, मतलब क्या इसका? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, एक मान लेते हैं y इज इक्वल टू 2 की पावर 20 है, मान लेते हैं 2 की पावर 20। आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस आंसर। अब यहाँ 20 इजी है, मान लो 2000 भी हो सकता था, 2 की पावर 2000 अगर हम आंसर बनाते तो इसमें कितने डिजिट्स आएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे इसमें अगर हम फिजिकली देखें तो हमें पता है 2 की पावर 20 को 2 की पावर 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। हमें इसका स्क्वायर करना है, एक बार करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 1024 इंटू 1024, वन जीरो 5। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 7 डिजिट्स आर देयर, है ना। अब ऑब्वियसली ऐसे ही 2000 होता तो हम ये सब तो चेक नहीं कर सकते। अब इसमें 7 डिजिट्स हैं। अब इसका मान लो क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, तो करेंगे log y इज इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर 20। कर सकते हैं ऐसा, हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास बनेगा log y इज इक्वल टू 20 log 2 बनेगा। आ रही बात समझ में? अब मान लेते हैं log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010, हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.301 इंटू 2 करेंगे तो 0.602, 0 शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा 6.02। ये बनेगा मेरा, ये मेरा क्या बन गया? log y। log y की वैल्यू जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होती है, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके बाद वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैंटिसा। जनरली मैंटिसा पॉजिटिव होता है हमेशा। मैंटिसा को पॉजिटिव बनाएंगे तभी कैरेक्टरिस्टिक्स की एक्चुअल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जो log ऑफ y, कभी भी जब हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं तो जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, उसके बाद वाली वैल्यू को मैंटिसा बोलते हैं।
अब चूंकि हमें y चाहिए, हमें क्या चाहिए y, तो हम दोनों तरफ क्या लगाएंगे, एंटी लॉग लगाएंगे। एंटी लॉग, एंटी लॉग किसका, लॉग y का, और इधर क्या लगाएंगे, एंटी लॉग किसका, 6.02 का। ऑब्वियसली ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं। एंटी लॉग लगाने का मतलब y खत्म हो जाए, तो एंटी लॉग लॉग में y खत्म हो जाएगा तो y की वैल्यू आएगी। अब y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब ये 0.20 ही है सिर्फ, इसका मतलब जो हमारा लॉग टेबल होगा 0 0 0 1 0 2 0 3 ऐसा, यहाँ पे 0 1 0 2 0 3 ऐसा, हमें चाहिए 0 2 0 0, इसका मतलब है ना। तो इसका मतलब है ये बेसिकली यहाँ नहीं आएगा, इस साइड में। इसके नीचे ये वाली, इसके नीचे और इसके, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी हमें, हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी टेबल में, ठीक है। कुछ तो हमें मिलेगी 0.1048 टाइप में, ऐसे कुछ वैल्यू मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। कैसे मिलेगी, एंटी लॉग देखने पे। लेकिन हमें ये बिंदी शिफ्ट करनी है, ये जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा डेसिमल में मिलती है। जो एंटी लॉग की वैल्यू होती है वो हमेशा डेसिमल में मिलती है। अब मुझे ये डेसिमल शिफ्ट करना है, कहाँ शिफ्ट करते हैं पता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 पे शिफ्ट करते हैं। कहाँ शिफ्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस, तो ये 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब इसका मतलब अब हम, चूंकि हमें नहीं पता 1 4 8 0 0 0 इस टाइप से, तो मेरा जो आंसर है वो कितने डिजिट का हो गया, 7 डिजिट का। मेरा आंसर कितने डिजिट का है, 7 डिजिट का है। इससे हमें पता लगेगा कि मेरे आंसर की स्ट्रिंग लेंथ कितनी है, हम ये बता सकते हैं। समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग लेंथ मतलब कितना बड़ा आंसर मेरा बनेगा इसके अंदर। जैसे कि जो हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 294 की पावर 20, 294 की पावर 20। log 6 की वैल्यू हमें दे रखी है, log 6 दे रखा है 0.778, और log 7 की वैल्यू हमें दे रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास log टेबल नहीं है तो हमें ये दे रखा है। अब हमें बताना है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 294 की पावर 20, तो उसमें एक आंसर बनेगा। वो कितना बड़ा आंसर बनेगा, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन कितना बड़ा बनेगा हम वो सर्टेनली निकाल सकते हैं। क्यों नहीं पता, एंटी लॉग होता तो हम वो भी बता सकते थे एग्जैक्ट आंसर कितना बनेगा। तो इसको कैसे करोगे, इसको y मानोगे। अगला स्टेप क्या बनेगा, लॉग लगाएंगे, तो लॉग ऑफ y कितना बनेगा, 20 log 294 ये बनेगा। अब log y की वैल्यू 20, अब इसको हमें सॉल्व करना है log 294 को। अब 294 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो 294 कैसे कैसे स्प्लिट होगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं, मान लो 294 को हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो 2147 में जाएगा, ठीक है। टू में नहीं, 3 में जाएगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 इंटू इसमें जाएगा। सो आई कैन से दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सो दिस इज log ऑफ, मैं इसको log 6 लिख लेता हूं प्लस log 7 इंटू 7। ऐसा 6 क्यों लिख रहा हूं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे log 6 की वैल्यू डायरेक्टली पता है तो मैं log 6 लिख देता हूं, ठीक है। फिर ये 20 बनेगा log 6 प्लस 2 log 7। कैसे बनेगा, ये 7 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा। अब मैं ये log, अब ये बनेगा 20 इंटू log 6 की वैल्यू कितनी है 0.778 प्लस log 7 इंटू 2 करना पड़ेगा, log 7 की वैल्यू दे रखी है, तो 2 log 7 की वैल्यू बनेगी 0.845 इंटू 2, 1089, ये बनेगा 1.69। सो आई हैव 1.69। ये समझ, ध्यान रखना ये सब log y की वैल्यू चल रही है। अब हमें ये सॉल्व ऐड करना है, तो 1.69 इंटू प्लस 0.778, तो ये 8 करेंगे, 16 हासिल 1 14, कैरी 1 2, यही बनेगा। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ गई 20 इंटू 2.468, ये आंसर बनेगा। तो इसमें हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.68 इंटू 2, यही बन जाएगा। 16 कैरी 1, 12 1 13, कैरी 1 8 1 9, और यहां बनेगा 4।
तो ये बन जाएगा मेरा 49.36। ये क्या बनेगा मेरा log y। तो y की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, मैंटिसा कितना है, एंटी लॉग लगाएंगे तो 0.36 का ढूंढेंगे, कुछ तो वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी पॉइंट समथिंग 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 मिलेगी। बिंदी कहां शिफ्ट करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 यानी 50 प्लेसेस शिफ्ट करनी है। तो y में कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 50 डिजिट्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर लिखेंगे उसमें 50 डिजिट्स होंगी, इसका ये मतलब है। ठीक है, समझ में आ रही बात यहां तक, यही किया होगा इसने। 50 डिजिट्स, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं वैल्यू छोटी होती, अभी तो क्या है, मान लेते हैं ये, अगर ये ऊपर पावर में माइनस होता फिर क्या कर लेते, y की पावर क्या था ये मेरे पास 294 माइनस 20। इसका मतलब ये क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 294 की पावर 20। तो इसका मतलब होता है ये आंसर होता है 0.000000000 कुछ कुछ करके फिर आंसर आता। समझ में आ रही बात। अब क्वेश्चन ये बनेगा जो आंसर आएगा और बिंदी के बीच में कितने जीरोस लगेंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की। लॉजिकल है ना, 1 बाय, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं, मान लो 1/2 की पावर -20 होता, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था 2 की पावर 20 किया था। मान लो मैंने कहा y की 2 की पावर -20 होता, तो ये क्या बन जाता 1/2 की पावर 20। समझ में आ रहा, तो 1 डिवाइडेड बाय जो भी इसका आंसर आता तो पॉइंट लगाना पड़ता 0 0 0 0 करके, फिर कहीं जाके कुछ वैल्यू बनती। ऐसे ही ये पूछ सकता है कि डेसिमल के बाद और डिजिट के बाद कितने जीरोस अपने को इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक, तो वंस अगेन हम लॉग वाई करते, तो यहां बनता -20 इंटू लॉग ऑफ 294, यही बनता। -20 इंटू लॉग ऑफ 294 अपन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करना चाहता। 2.468 ये बन जाता। फिर ये क्या बन जाता, माइनस मल्टीप्लाई करते तो ये बनता -49.36। यहां तक बात समझ में आती है ना। अब कुछ किताबों में ऐसा लिखा जाएगा कि जहां पे माइनस है ना, तो इसका मतलब बिंदी और डिजिट के बीच में 49 आंसर आ गया, दैट्स इट। आंसर क्या आ गया 49। मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं एक बार कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स +1 वो सच है, बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स +1 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कहा मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है हमें, एंटीलॉग हमेशा हम पॉजिटिव की वैल्यू निकालते हैं। तो अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ा शायद 12वीं में सब आता होगा, -49 प्लस -0.36 कर सकते हैं। अब मैं +1 कर सकता हूं और -1 कर सकता हूं। अब -1 ये बनेगा -50 प्लस 1.000 में से -0.36 करूंगा तो प्लस कितना बनेगा 6, ऐसे बनेगा। ठीक है, इस चीज को कैसे लिखा जाता है, 50/0.64, इसको ऐसा लिखा जाता है, 50 नेगेटिव में है। ठीक है, अब एंटी लॉग लगाएंगे, लॉग वाई की वैल्यू ध्यान रखना, एंटी लॉग लगाएंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये इसका मैंटिस है। एंटी लॉग किसका चेक करेंगे अपन, समझ में आ रहा है, पॉइंट्स, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो आंसर तो चेंज होएगा ना, तो 0.64 वाला टेबल में देखेंगे कुछ पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, तो जब 0.64 का एंटी लॉग देखेंगे तो मान लेते हैं 0.3478 आ रहा है, मान लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल के तौर। अब मुझे बिंदी शिफ्ट करनी है, किधर शिफ्ट करूंगा, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट। 1 बाय इसको सॉल्व करोगे तो 0.0000 समथिंग आएगा ना, और अब ने हमने पॉइंट निकाल आंसर निकाला 0.34, तो बिंदी लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। कितनी शिफ्ट होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स +1,
लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कितना है -50 + 1 कितना आएगा माइनस। इसका मतलब है 49 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करनी है, जो कि किताबों में ये दे देते हैं कि अच्छा वो माइनस में आ गया ना तो वही का वही आंसर है। मैं समझा रहा हूँ का वही आंसर क्यों है, वो इसलिए आंसर ये है, ये कारण है इसका, वही का वही आंसर होने का ये कारण है, क्योंकि मेंटिसा हमें उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है तो +1 -1 करते हैं, तो क्योंकि एक बार वहां -1 बढ़ गया कैरेक्टरिस्टिक्स में, बाद में उसमें +1 किया तो वही खत्म होके 49 हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव है तो कैरेक्टरिस्टिक्स +1 करके राइट साइड में शिफ्ट करना है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो सेम वैल्यू लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। लेकिन अगर दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक्स +1 बैठा है तो उसका लॉजिक ये है, एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसा इसलिए हो रहा है। आ रही बात समझ में? हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके गुड। चलो एक एग्जाम्पल है अपने पास, हम उसको और कर लेते हैं, फिर किताब में ही एग्जाम्पल है। इसने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन 3/4। हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है 3/4 की पावर अपना है 500, तो 3/4 1 से कम हो जाएगा, 0.75 के बाद 500 करेंगे तो 0.0000 समथिंग करके कुछ आएगा। तो पूछ रहा है समथिंग और बिंदी के बीच में कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है, तो हम क्या मानेंगे, इसको y मान लेंगे, फिर करेंगे log y इज इक्वल टू log ऑफ 3/4 की पावर, तो ये बन जाएगा मेरा 500 log 3 माइनस log 4। अब हमारे पास log 3 की वैल्यू पता है और log 2 की वैल्यू पता है, समझ में आ रही बात? 500 इंटू log 3 हमें कितना दे रखा है 0.47 से, ये भी याद कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। log 4 कैन बी फाउंड आउट एज log ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 2 log 2, सो 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, तो दैट मीन्स 0.602। तो इसमें से मुझे क्या करना है 0.602 माइनस करना है। आ रही बात समझ में? तो मेरे पास क्या बचेगा 0.4771 में से ये 0.602 ये माइनस करना है। 10 में से 1 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 9 में से 7 गया 2 एंड 0.142 आ जाएगा। माइनस में, तो दिस इज 500 इंटू माइनस 0.1249, सो बेसिकली 100 करेंगे तो ये 12.49 इंटू 5 आ जाएगा। 5 9 जा 45, 5 जा 24, 2 5 2 जा 10, 12 कैरी 1, so I will get an answer as minus of 62.45। ठीक है, टेक्निकली ये ऐसा लिख सकते हैं 63 bar 0.55। समझ में आ रहा है? बेसिकली इतने में हमारा काम चल जाएगा। बिंदी और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स हैं, कितने जीरोस हैं 62, एंड ऑफ द स्टोरी। नहीं तो 63 माइनस 63 + 1 करेंगे तो भी 62 आ जाएगा, दैट इज द आंसर। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कुछ सब कुछ? अगला वाला करो, 11th वाला क्वेश्चन करो।
कहाँ पे? कहाँ, घर से आई है? हाँ जी, हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11। 125, 12.5, 100/12.5, 1/8 नहीं होता? 100/8 12.5 होता है, तो 1000/8 हो जाएगा। समझ में आ रही है कुछ कुछ? सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव log 2 की वैल्यू हमें निकालना है, log ऑफ 1250 मान लेते हैं, ठीक है। अब और कुछ नहीं दिया हुआ, चूंकि log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010, यानी बेस 10 होगा। हम इसको ऐसे सकते हैं log ऑफ, यू रिमेंबर 12.5 क्या होता था? 100/8, याद है? परसेंटेज 1/8, 12.5%। ठीक है, तो अपने को 2 जीरो और लगाने, तो इसका मतलब 1250 की वैल्यू 10,000/8 हो जाएगी। सो आई कैन टेक 10,000 डिवाइडेड बाई 8। सो लॉग ऑफ 10,000 माइनस लॉग ऑफ 8, यही सॉल्व करना है। ये बेस 10 है, ये भी बेस 10 है। 10,000 का मतलब है लॉग ऑफ 10 की पावर 4 बेस 10, और ये इसको हम कर सकते हैं लॉग ऑफ 2 क्यूब बेस 10। तो ये यहां से कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 इंटू लॉग 2, 0.3010। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.301 डिवाइड बाय 3, तो 909। ठीक है, तो 4 में से 9.09 माइनस करना है अपने को, है? हाँ, log 10 बेस 10। अच्छा, ये मैंने बताया नहीं क्या, log a बेस a 1 आता है ना? log a बेस a 1 होता है, क्यों? क्योंकि log a को अपन log a बाय b और log a बाय b कर सकते हैं, तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए log a बेस a 1 होता है। तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। तो 4.000 में से 0.909 माइनस करना है, 10 में से 9 गया 1, 9 1, तो आंसर आ जाएगा 3.191। तो log ऑफ 1250 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। फिलहाल हमें निकालना था, अगला निकालना था log ऑफ 0.1250, यही बात है। इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ 1250 इंटू 10⁻⁻6 लिख दूं। इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 1250 प्लस log ऑफ 10⁻⁻6 लिख सकता हूं। ये तो अपन ने निकाल ही रखा है मेहनत करके। कितना आया था इसका आंसर? इसका आंसर आया था 3.191, ये -6 आ जाएगा। तो 6.000 में से 3.191 माइनस करना है, 10 में से गया 908, तो -2.809, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अगले वाला क्या था? 12520 है, यानी दो जगह बिंदी और +2 और हो जाएगा, जो ये आंसर है इसमें 2 और जुड़ जाएगा, 5 पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक है, 097 आ रहा है, हमारा 191 क्यों आ रहा है? 4 माइनस, कुछ गलती तो नहीं करती? हाँ, 0 ही आएगा, सॉरी, 091 आएगा, ये 7 क्यों आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ यहाँ पे हैंग क्यों हो गया? क्या रबड़ नहीं काम कर रहा है इसका?
अच्छा मीडियम है, ये क्या है? स्ट्रोक इरेजर, हटा भाई। ठीक है, बोलिए, समझ में आती है बात? दिस टेक्स केयर ऑफ योर लॉग्स चैप्टर। सो टुडे वी कैन स्टार्ट विद पीएनसी। हाँ जी। इंटीग्रल पार्ट मीन्स, हाँ जाओ जाओ 5 मिनट, एक ही तो घंटा हुआ है। इंटीग्रल में समझ में कहाँ इंटीग्रल पार्ट है? हाँ हाँ, जल्दी जा, फिर इतनी देर में तो आ जाना था वापस। ओके, सो ऑनलाइन प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी ये हमारा है लॉग्स, इसमें प्रॉपर्टीज याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं होएगा। अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज इज इम्पोर्टेंट। हाँ कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा रुक जाओगे तो बात बन जाएगी। कौन सी? कितने बजे? 2 बजे? आज 2 क्लास तुम्हारी है? हैं? क्यों? अच्छा, ठीक है, बुद्धू बना रहे हैं मतलब मतलब जरूरत क्या है? कोई बात नहीं, ठीक है। और हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस करते हैं, तो एक चीज तो कर ही लें, आधा परमुटेशन या कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ तो निकाल ही लें। ओके, सो दिस topic is on the, basically it is about counting, it is about addition. So multiplication is a kind of addition, है ना? तो पहले हम सिंपल जोड़ते हैं, 1+2 ऐसा जोड़ते हैं, फिर उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो हमें 5+5+5 4 बार जोड़ना है, तो हम उसको 5 × 4 कर देते हैं। ऐसे ही जब हमें कुछ और कॉम्प्लेक्स एडिशंस करनी होती हैं, ठीक है, अल्टीमेटली इट इज अबाउट एडिशन, तो जब हमें और कॉम्प्लेक्स एडिशन करनी होती है तो हम पीएनसी का सहारा लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके अंदर जो फंडामेंटल्स हैं, जो कैट वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हमारे एफपीसी पे आते हैं। एफपीसी का मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? बेसिकली इसके अंदर हमारे पास दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बोलते हैं और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो कहाँ पे एडिशन यूज करना है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, हमें सबसे ज्यादा जरूरी इस पूरे चैप्टर में यही है कि कहाँ ऐड करें और कहाँ मल्टीप्लाई करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडिशन, बट वेयर इट मेक्स सेंस फॉर अस टू simplify our addition by multiplying and where it makes sense that we simply add. So let us say I have we take an example. Let us say I am having 3 cars, toy cars मान लेते हैं, and 2 dolls. 3 कार हैं और 2 डॉल हैं. I need to choose any one of them. मुझे एक चीज चाहिए इसमें से, बताओ कितने तरीके से ले सकता हूं मैं? इन हाउ मेनी वेज कैन आई टेक अ कार और अ डॉल? इन हाउ मेनी वेज आई कैन टेक अ कार और अ डॉल? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो मुझे कार चाहिए या तो मुझे डॉल चाहिए, तो मैं कितने तरीके से ले सकता हूं? है कि सर मेरे से तो आप लेके ही दिखा दो, आप है क्या है, काहे का डॉल काहे का कार है? तो अगर ऐसा नहीं है तो लेट अस assume I can take at least one. So let us say there are 3 cars. I may want to say C1, C2, C3. Doll I may say D1 or D2. मुझे इनमें से कोई भी एक चीज लेनी, that means I need a car or a doll. So और का मतलब है हिंदी में या. That means either I am looking to pick up a car or I am looking to pick up a doll. So I have to pick only one of the items out of the given items. तो या तो मैं पहली कार लूंगा वन वे, या तो मैं दूसरी कार लूंगा और या तो मैं तीसरी कार लूंगा. So I can pick up a car in how many ways? 3 ways. और या तो मैं पहली डॉल लूंगा और या तो मैं दूसरी डॉल लूंगा. कितने तरीके हो गए मेरे पास पिकअप करने के? 5 ways. कार, कोई भी एक कार, पहली कार या दूसरी कार या तीसरी कार, 3 ways. पहली डॉल या दूसरी डॉल, यानी एक ही काम करना है, दैट मीन्स एडिशन. सो कार को चूज करने के 3 तरीके, डॉल को चूज करने के 2 तरीके, दोनों में से मुझे एक ही चीज चाहिए, ध्यान रखना. तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका? एडिशन. समझ में आ रही बात? whenever you have to choose or you have to take any one item out of the given possible articles, then it is always a addition. Now if I say I need to choose a car and a doll, क्या मतलब है इसका? कार चाहिए और डॉल भी चाहिए, इसका मतलब यहां हिंदी वाला और आ जाएगा. Now how many ways can I do this? 6. Why? क्योंकि कोई भी कार चुननी है, कितने तरीके से चूज कर सकता हूं? 3. या तो पहली कार या दूसरी कार या तीसरी कार, 3 ways. डॉल चूज करनी है, कितने तरीके से कर सकता हूं? क्या ये दोनों काम करने हैं? इसका मतलब है आप पहली कार चूज कर सकते हैं, उसके साथ डॉल 1 ले सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल. आप पहली कार ले सकते हैं, दूसरी डॉल ले सकते हैं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल. आप दूसरी कार पहली डॉल ले सकते हैं, दूसरी कार दूसरी डॉल ले सकते हैं, तीसरी कार पहली डॉल ले सकते हैं, दूसरी 1 2 आप थर्ड कार के साथ डॉल 1 ले सकते हैं और थर्ड कार के साथ डॉल 2 ले सकते हैं. सो दिस और दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, एडिशन 1 2 3 4 5 6. बट दिस इज ऑल्सो, लेकिन अगर यही 30 और 40 हो जाता तो मामला फंस जाता. उस केस में इट मेक सेंस दैट वी मल्टीप्लाई. सो वेन एवर यू हैव टू परफॉर्म मोर देन वन एक्टिविटी साइमल्टेनियसली, देन यू मल्टीप्लाई. समझ में आ रही बात? जैसे कि अगर थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स और करें, मान लेते हैं आपके पास 3 शर्ट्स हैं, 2 ट्राउजर्स हैं और 5 कोट हैं. If I ask you, you are going to wear only one, then how many ways can you wear only one? That means या तो शर्ट पहनोगे या पैंट पहनोगे या कोट पहनोगे. कितने तरीके से पहन सकते हो?
10 तरीके से। दैट मीन्स यू आर वेयरिंग अ शर्ट और अ ट्राउजर। वो सोच रहा है सर कैसा स्मार्ट लगूंगा मैं। तो शर्ट और ट्राउजर और कोट, एक ही चीज पहननी है। सो और, बट इफ आई से यू हैव टू वियर अ शर्ट एंड अ ट्राउजर एंड अ कोट, तो आप कितने तरीके से अपनी ड्रेसेस बना सकते हो? हैं? यू कैन वियर अ शर्ट, एक ही शर्ट पहनोगे, या तो पहली या दूसरी या तीसरी, तो ऐड होएगा 1+1+1। ट्राउजर या तो एक ही पहनोगे, या तो फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, सो 2 वेज। कोट एक ही पहनोगे, या तो पहला कोट या दूसरा कोट या तीसरा या चौथा, यानी 5। लेकिन ये सारे काम करने, शर्ट भी पहननी है एंड ट्राउजर भी पहननी है एंड कोट भी पहनना है, तो मेरे पास कितने बन जाएंगे? 30। सो आई हैव 3 पॉसिबल वेज ऑफ वियरिंग माई एंटायर क्लोथ्स दैट आर अवेलेबल टू मी। तो आप 30 अलग अलग तरीके के बंदे दिख सकते हो इसमें, अलग अलग वेरिएशंस पहन के। आ रही है बात समझ में? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ एंड। तो यहाँ फंडामेंटली हमें समझना है एंड और। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थिएटर है, उसमें 3 एंट्री है, 5 एग्जिट हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू एंटर एंड एग्जिट इन दैट हॉल? 3 into 5। 3 तरीके जाने के, 2 तरीके आने के, दोनों काम करने हैं। A simple example, let us say there are 3 ways to travel from, let's say Hisar to Panipat, and from Panipat to Delhi, let's say you have 2 ways. तो हिसार से पानीपत जाने के मान लो 3 तरीके हैं, और पानीपत से दिल्ली जाने के मान लो 2 तरीके हैं। So in how many ways can you go from Hisar to Delhi via Panipat? 6 ways। ठीक है, तो क्योंकि 3 रास्ते, यहां से यहां एक ही रास्ता लोगे तो दिस और दिस और दिस, और यहां से यहां जाने के 2 रास्ते हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो कौन कौन सा रास्ता? फॉर एग्जाम्पल आप कैसे जा सकते हो हिसार से पानीपत? स्विम कर सकते हो, स्विमिंग करके जा रहे हो मान लो, और कार से जा रहे हो, और या फिर फ्लाइट। फिर पानीपत से दिल्ली कैसे कैसे जा सकते हो? स्कूटी और साइकिल सर। स्कूटी लिख दे तो साइकिल भी लिख दो। बुलक कार्ट। अब आपके 6 रास्ते कौन से हुए? देखो, आप स्विमिंग करके स्कूटी जा सकते हो, एक रास्ता। आप स्विमिंग करके बुलक कार्ट, 2 रास्ता। आप कार पकड़ के स्कूटी पकड़ सकते हो, 3 रास्ता। आप कार पकड़ के कार्ट पकड़ सकते हो, 4 रास्ता। आप फ्लाइट पकड़ के स्कूटी पकड़ सकते हो, 5 रास्ता। और फ्लाइट पकड़ के कार्ट पकड़ सकते हो, 6 रास्ता। बट यहां से यहां जाने के 3 रास्ते, यहां से यहां जाने के 2 रास्ते, दोनों काम करने, बिकॉज यू हैव टू ट्रेवल वाया पानीपत। समझ में आ रही बात? नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट यू टू गिव मी करेक्ट आंसर टू दिस, सो दैट आई एम श्योर कि एंड और तो कम से कम क्लियर हो गया है। मान लेते हैं हमारे पास एक कमरा है जिसमें मान लेते हैं 100 डोर्स हैं और 100 विंडोज हैं, हैवा महल है मतलब, मान लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन यू एंटर थ्रू अ डोर एंड एग्जिट थ्रू विंडो? In how many ways can you enter through a door and exit through window? 40 दरवाजे, 40 विंडो। दरवाजे से जाना है, खिड़की से आना है? 1600। अंदर जाने के कितने तरीके हैं? 40। बिकॉज या तो आप डोर 1 यूज करोगे, या डोर 2 यूज करोगे, या डोर 3 यूज करोगे, कोई भी 40 डोर यूज करोगे। बाहर आने के या तो विंडो 1, या तो विंडो 2, या तो विंडो 3 और सो ऑन, या तो विंडो 40। यहां जाने के 40 तरीके, बाहर आने के 40 तरीके, बट दोनों काम करने हैं। विंडो डोर से जाना है एंड विंडो से आना है, सो मल्टीप्लीकेशन। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन यू एंटर थ्रू अ डोर एंड एग्जिट थ्रू अनदर डोर? In how many ways can you enter through a door and exit through another door? 40 into 39। अंदर जाने के कितने रास्ते हैं? 40। और बाहर आने के 30, क्योंकि जिससे गए हो उससे नहीं आना है। In how many ways can you enter through a window and exit through same window? 40।
अंदर जाने के 40 रास्ते और बाहर जाने का एक ही, क्योंकि जिस खिड़की से आप अंदर गए उसी खिड़की से आपको बाहर आना। In how many ways can you enter through a door or a window? In how many ways can you enter through a door or a window and exit through any other door or a window? 80 into 79. है 80 into 79. 80 इंटू 79. 79। किसी भी खिड़की या दरवाजे से एंट्री कर सकते हो, यानी एंट्री करने के 80 तरीके, लेकिन जिससे गए हो उससे बाहर नहीं आना, तो किसी और से आना है, तो जिससे गए, चाहे खिड़की से गए दरवाजे से, वो रास्ता कट हो गया, तो बच कितने गए? 79। क्या दोनों काम करने हैं? हाँ, तो ये मेरा आंसर है। यहां तक बात समझ में आती है? एंड और का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहाँ एंड लगेगा, कहाँ और लगेगा? ठीक है, ओके। देन इसी चीज को हम फर्दर करते हुए, बढ़ाते हुए मान लेते हैं मेरे को 3 लेटर का वर्ड बनाना है, विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग हो या ना हो। मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं? मान लो ये सवाल है, आई वॉन्ट टू मेक अ 3 लेटर वर्ड, इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन आई मेक? अब ये क्वेश्चन आ गया, रिपीटिशन अलाउड या रिपीटिशन नॉट अलाउड? रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या है कि सेम अल्फाबेट बारी बारी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब है कि वो अल्फाबेट हम नहीं यूज कर सकते। कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। तो आंसर कितना आएगा इसका? विद रिपीटिशन आंसर क्या आएगा? है कितना है? 26 into 26 into 26 with repetition. First place can be occupied in 26 ways, second also 26 and third also 26. तीनों काम करने हैं तो multiplication. If repetition is not allowed, then 26 ठीक है, समझ में आ रहा है? विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन का क्या मतलब है? ठीक है, ओके। देन let us say there are 3 chairs and there are 3 people. 3 chairs and 3 people. In how many ways can 3 people sit on these 3 chairs? तीन कुर्सी, 3 लोग, कितने तरीके से तीनों लोग कुर्सी पे बैठ सकते हैं? 6, 9. In how many ways can 3 people sit on 3 chairs? पहला बंदा कहीं पे भी, या तो यहां तो यहां तो कहीं पे भी 3 ways. सेकंड बंदा 2, तीसरा बंदा, तीनों काम करने। Okay, in how many ways can 3 chairs allow 3 people to sit on them? In how many ways will the 3 chairs allow 3 people to sit on them? क्यों? पहली चेयर पे कोई भी बैठ सकता है, दूसरी पे भी कोई, वो भी अलाउ कर सकती है किसी को भी बैठने के लिए। बिल्कुल सही। तो आप कुर्सी पे बैठे या कुर्सी आपको बिठाए, कोई फर्क पड़ेगा? आंसर विल रिमेन सेम, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अंकुश 9 नहीं होगा, 3 होगा। इसका मतलब ये है कि कुर्सी आपसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि आप बैठते हो तो 6 तरीके से बैठते हो और कुर्सी बिठाती है तो 9 तरीके से बैठते हो। ठीक है, सो 3 into 2,
Okay, then we have a question like, let's say we have 5 fingers and we have 3 rings. 5 उंगलियां हैं और 3 rings हैं. In how many ways can I wear these 3 rings in my 5 fingers? उंगली तो 5 ही होती हैं. मान लो 3 अंगूठियां हैं आपके पास. I have 5 fingers and I have 3 rings. In how many ways can I wear 3 rings in 5 fingers? क्यों? So I have 5 fingers. Three rings. कितने तरीके से पहन सकते हैं? $60. देखो, पहली फिंगर किसी में भी 5 में जा सकती है, दूसरी भी किसी में जा सकती है, तीसरी में भी किसी में जा सकती है. एक तो पॉसिबिलिटी है. ओके, ऐसा भी हो सकता है. पहली रिंग कितने तरीके से जा सकती है? 5 तरीके से. नहीं, फर्स्ट फिंगर कैन एक्सेप्ट एनी ऑफ द 3 रिंग्स. सेकंड फिंगर कैन आल्सो एक्सेप्ट एनी ऑफ द 3 रिंग्स. थर्ड आल्सो, फोर्थ आल्सो, 5 आल्सो. ये भी पॉसिबल आंसर है. और आप कह रहे हो 5 into 4 into 3. कौन सा सही है? ये आंसर सही है. ये कुर्सी थोड़ी ना एक के ऊपर एक नहीं बिठाओगे. उंगली है ये. क्यों? एक उंगली में तो अंगूठी नहीं होती क्या? बस में भी आप बिठा ले तो ऐसे करके टेढ़ा होके नहीं बैठ जाते हैं. बट एनीवे हम इसमें नहीं एज्यूम कर सकते हैं. बट फिंगर्स के साथ वी कैन सर्टेनली. नाउ द क्वेश्चन इज, नोबडी, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू टेल वेदर द रिपीटिशन इज अलाउड और नॉट अलाउड. ठीक है? Repetition is allowed or not allowed. It is we need to figure out whether it is allowed or not allowed. For example, if I were to ask you, let's say, a city needs to have a phone numbers of 8 digits, say for example. So how many phone numbers can a city allot? Right now, will the repetition be there or not there? No. क्यों फोन नंबर में 99 नहीं होता क्या? 66 नहीं होता क्या? होता है ना. मान मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक शहर में अपने को फोन नंबर अलॉट करने हैं, 8 डिजिट का फोन नंबर अलॉट करना है. ठीक है, तो कितने फोन नंबर अपन अलॉट कर सकते हैं? एट की पावर 8. क्यों भाई? 8 डिजिट का नंबर है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड इन हाउ मेनी वेज? 10 वेज. कितने डिजाइन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसे मतलब और कैसे नंबर लगाओगे?
भाई फर्स्ट प्लेस, भाई पहला नंबर, अभी इसमें भी ये झोल है, अभी पूरे पूरा क्वेश्चन। पूरा बेस सिस्टम पढ़ा दिया मैंने तुमको, अब तुम बोल रहे हो 10 कैसे आएगा? अबे 0 से 9 10 ही तो होते हैं, तो फिर ऐसे कैसे बात कर रहे हो सब? 10 की पावर 8, अब इसमें 10 की पावर 8, हाँ चांसेस आर -1 होगा आंसर, क्योंकि 000 इज नॉट ए नंबर. So you may have first phone number as 0000 7 times, then 1, or you may have 000010 like this, right? So only one x is not acceptable यहाँ पे, जहाँ पे हम 00000 आठों बार में 0 दे रहे हैं, that's a zero number, that's not a number. So that will be the answer. आ रही बात समझ में? 0000 और तो, लास्ट में, हेलो हाँ आवाज नहीं आ रही दीक्षांत तुम्हारी, बोलो एक मिनट, फिर से एक मिनट. हेलो हाँ बोलो दीक्षांत. सर, 0000 और लास्ट में 1 ले जाएंगे तो वो तो 1 डिजिट का ही नंबर हो जाएगा ना सर फिर? क्या हो जाएगा? अब हाँ जैसे 8 डिजिट का नंबर बनाना है, 0000 7 डिजिट तक लास्ट में 1 ले जाएंगे तो वो हाँ 1 डिजिट ही काउंट होगा सर? हाँ मतलब 8 और लेस इस वाले केस के अंदर, और अगर हमें एग्जैक्टली 8 डिजिट का ही बनाना है लेटर से, सो देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दोज पॉसिबिलिटीज, ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट वुड बी. मान लेते हैं जो आप कह रहे हो कि हमें 8 डिजिट का ही बनाना है, समझ में आ रहा है? 8 डिजिट Yes, sir. का ही बनाना है, उस केस में दिस प्लेस विल बी ऑक्यूपाइड इन 9 वेज, बिकॉज यू कैन नॉट हैव 0 हियर. आ रही बात समझ में? Yes sir, yes sir. But this place will be occupied in 10 ways, 10 ways, 10 ways, 10 ways, 10 ways, 10 ways, 10 ways. So answer will become 9 into 10 की power 7. Yes sir. Okay. This will be the answer if your answer, if the question is that the phone number has to be necessarily of the 8 digits. In this case, when we are saying 10 की power 8 minus 1, it is possible that my phone number is of 1 digit or 2 digit or 3 digit or 4, everything is considered. But if you are saying it is of 8 digits only, मतलब ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, that means this number you say 00 3 4 5 6 7 8, मान लो this is not acceptable because it is only of 6 digits. If this is not acceptable, that means first place will be occupied only 9 ways. 0 नहीं आ सकता यहाँ पे. अगर यहाँ 0 नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा मान लो, उसके बाद 0 तो acceptable है. Now everything is acceptable. The problem lies with the first digit. So if your first digit हमने ensure कर लिया 0 नहीं है, इसका मतलब the number has to be 10 10 10, तो आंसर आ जाएगा 9 into 10 की power 10. That's how you do it. Oops. ओ भाई नजर आ रही है स्क्रीन? नो सर. अच्छा अब समझ में, अब समझ में आया क्या समझा रहा था? हाँ समझ गए थे सर. अच्छा समझ गए थे, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है. Then okay, let me ask you this exam question, CAT question. How many 6 digits even palindromes can be formed? पैलिंड्रोम समझते हो क्या होता है? 1 to 1 is a palindrome. MADAM, it's a palindrome. हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है और वो नंबर इवन होना चाहिए और वो नंबर पैलिंड्रोम होना चाहिए. कितने नंबर बनाए जा सकते हैं?
राहुल गलत है ये, क्योंकि इवन नंबर बनाने हैं ना, इवन इवन पैलिंड्रोम ओके। तुम्हें 6 डिजिट का नंबर बनाना है। पैलिंड्रोम क्या होता है? जो इधर होगा वो इधर होगा। इवन नंबर बनाने के लिए या तो यहाँ 0 आएगा, या तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, 8 आएगा। So this place will be occupied in 5 ways. This can be occupied in, this will be occupied in, this will be occupied in, अच्छा this will be occupied in, and this will be occupied in 5. तो ये आंसर गलत है। पहली बात, ये 5 नहीं हो सकता। ऑल दो 0 आने से इवन नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर 0 यहाँ आएगा तो यहाँ भी 0 आना चाहिए, और यहाँ 0 आ गया तो नंबर 6 डिजिट का बचेगा नहीं। तो सबसे पहले तो ये घटाओ, इसका मतलब दिस विल बी 4। ये क्या होगा? एक ही तरीका होगा। मान लो यहाँ तुमने 2 लिख दिया, तो यहाँ तुम्हारे पास चॉइस थोड़ी ना कुछ और लिखने की, देयर इज नो चॉइस। भाई जो डिजिट यहाँ कर दी वही डिजिट तो यहाँ लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे तुम्हारे पास 10 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे कितनी है? 1। जो नंबर यहाँ लिख दिया वो तो मजबूरन आएगा। यहाँ 10 है तो यहाँ कितनी है? 1। कितने तरीके हो गए? 400। कैट का क्वेश्चन एग्जैक्ट। पैलिंड्रोम में सर नंबर रिपीट हो सकते हैं, जैसे 1 2 2 और 2 2 1, या ऐसा कि 1 2 3 और 3 2 1, मतलब अलग अलग ही होने चाहिए फर्स्ट 3 डिजिट, अगर हम 6 डिजिट का पैलिंड्रोम बना रहे हैं। तो मुझे ना बिना रिपीटेशन के पैलिंड्रोम लिख दे, नोबेल मैथ्स का नोबेल तेरे को ही मिलेगा। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, आप मजे ले रहे हो सर। नहीं सीरियसली मजे की बात नहीं है। पैलिंड्रोम का क्या मतलब है? पैलिंड्रोम का मतलब जो चीज यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, बिना रिपीटेशन के कैसे आएगा मतलब? नहीं नहीं वो बात नहीं कह रहा मैं आपसे, ये कह रहा हूँ जैसे मान लो 6 डिजिट का पैलिंड्रोम लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ पहले 3 डिजिट हैं, उनमें हाँ नंबर रिपीट हो सकता है, ये डाउट है मेरा, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जैसे मैं 1 2 2 और 2, जैसे पैलिंड्रोम लिख रहे हैं ना, तो फर्स्ट 3 डिजिट है तो उसमें नंबर रिपीट, हाँ ये पूछ रहा हूँ मैं, अगर हम 3 डिजिट डालते हैं शुरू में, हाँ तो जो शुरू में आपने 1 2 3 लिखा है ना, इसमें भी नंबर रिपीट हो सकता है क्या? जैसे 1 2 2, ये वाली चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ ये हाँ ये बोल रहा हूँ। हाँ होएगा ना, उससे क्या मतलब, उससे कोई फर्क नहीं, या तो नंबर रिपीट होगा या नहीं होगा। अगर कहीं भी रिपीट हो रहा है तो यहाँ भी रिपीट हो ही सकता है। ये भी पैलिंड्रोम तो है ही है। हाँ इवन दिस इज अ पैलिंड्रोम। यू रीड ओनली डेफिनेशन ऑफ पैलिंड्रोम इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दैट्स ऑल। चाहे कितना ही रिपीट कर लो, 1 0 0 0 0, ये भी पैलिंड्रोम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ सेम है ना, 2 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है राहुल। यस सर, आगे सर। ओह नाउ क्लियर है हाउ मेनी 60 पैलिंड्रोम्स एग्जिस्ट? नो प्रॉब्लम्स। Now I'll explain to you the difference between permutation and combination, जो सारी फसाद की जड़ है इस चैप्टर में, या जो सारा कंफ्यूजन क्रिएट करती है वो यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्बिनेशन एंड अ परमुटेशन, और किसको कहाँ यूज करना है। अगर हमें ये समझ में आ जाए तो काफी हद तक हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, okay, but before I go there, let me ask you a few more questions so that I'm sure you understood. Let's say I have this word called result, for example. There are 6 alphabets, right? How many 6-letter words can be made from this? No repetition. Repetition not allowed.
6 factorial because I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. This can occupy in 6 ways, 5 ways, 4 ways, 3 ways, 2 ways. ठीक है. One standard question is normally asked. If you heard of this word called Mississippi, ये जब भी कहीं भी पढ़ाई करोगे, PNC पढ़ोगे तो क्वेश्चन आएगा, how many different words can be made using the words या using the letters available in the word called Mississippi. तो Mississippi, Mississippi, SSIPPI. I think that is the spelling if I am not right. यही था क्या Mississippi है? एस तो है ही नहीं, सी मतलब अच्छा एस हाँ ये रहा ना, 4 ही तो ऐसा आएंगे, 4 एस 4 ये 2 पी, मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए. देखना मिसिसिपी नदी का नाम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स, यही है ना. इन अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? सो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो 11 फैक्टोरियल आंसर आना चाहिए. बट चूंकि ये रिपीट, ये एस यहां आ जाए, ये एस यहां आ जाए, तो कोई नया वर्ड तो नहीं बनेगा. सो इट इज द सेम वर्ड, राइट. से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि ए बी सी को यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं आप? 6 फैक्टोरियल. वो कौन से वर्ड बनेंगे? ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी. ये 6 बन जाएंगे. 3 फैक्टोरियल है. हाँ मतलब 6 तो आंसर आएगा इसका. ठीक है, तो आंसर कितना इसका? 3 फैक्टोरियल मतलब. ठीक है, अब इसमें से मान लेते हैं हमने बी और सी को सेम कर दिया, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया? ए बी बी हो गया. ए बी बी यानी बी और सी को हमने रिप्लेस कर दिया. सी की जगह अगर हम बी लिख दें, सी की जगह हम बी लिख दें, तो ये दोनों दो जो अलग थे वो एक ही बन जाएगा. अच्छा, इसकी जगह मान लो मैंने बी लिख दिया, बी ए बी, और यहाँ पे बी बी ए सी, तो अब ये बी ए बी ये वाला दोनों सेम हो गया, और उसी तरीके से ये दोनों सेम हो गया. आधे हो गए. वो आधे कैसे हुए? वो आधे ऐसे हुए, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो रिपीटिशन हो रहा है. ठीक है, क्योंकि जो हमने बारी ए बी बी एंड ए बी बी इज वन एंड द सेम थिंग. सो बेसिकली जो रिपीटिशन हो रहा है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार. सो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार. डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार. तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा. सो माय आंसर विल बी 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 2. समझ में आ रही बात? सो दैट्स हाउ इट इज टू बी हैंडल्ड. ये रिपीटिशन वाला केस है. ठीक है, और ठीक है, अब हम आते हैं अपने पीएनसी पे. नॉर्मली परमुटेशन पहले बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बाद में आता है, बट फॉर रियल इन माय अंडरस्टैंडिंग इज पहले कॉम्बिनेशन आता होगा, फिर परमुटेशन बनती होगी बात. इसका मतलब क्या है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, और क्या डिफरेंस है? मान लेते हैं हम कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करते हैं. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चॉइस. सी मतलब होता है चॉइस, चूज करना, मतलब होता है चूज करना. कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 मिठाइयां हैं, मान लेते हैं लड्डू, बर्फी एंड पेड़ा. यू आर इंटरेस्टेड इन ईटिंग एनी 2. दैट मीन्स यू वांट टू चूज एनी 2. कौन कौन सी खा सकते हो आप बताओ? लड्डू बर्फी खा सकते हो, लड्डू पेड़ा खा सकते हो, बर्फी पेड़ा खा सकते हो. कितने तरीके से खा सकते हो? 3. समझ में आ रहा है? बिकॉज वी आर चूजिंग एनी 2, राइट. दैट मीन्स इफ यू वांट टू राइट दिस मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सो विल से आपके पास 3 चीजें हैं, चूज करनी है. चॉइस कितनी चीजें चूज करनी है? 2. तो हम इसको लिख देंगे 3C2. 3 आइटम थे, चूज करनी है. कितनी आइटम चूज करनी है? 2. तो हम क्या लिखेंगे उसको? 3C2. ये लॉजिक समझ में आ रहा है? जनरल वर्ड जो होता है एनसीआर का क्या मतलब हुआ? n आइटम्स हैं, n चीजें हैं, उसमें से मेरे को चूज करनी है. कितनी आइटम चूज करनी है? r. तो हम इसको एनसीआर बोल देते हैं. नाउ चूज का क्या मतलब होता है? चूज का मतलब होता है कि आपने लड्डू बर्फी लिया,
या बर्फी लड्डू लिया, कोई फर्क पड़ रहा है आपको? मतलब पहले लड्डू खाया फिर बर्फी खाया, या पहले बर्फी खाया लड्डू खाया, डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू? नो, अपने को तो पाड़ने से मतलब है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ ही आने दो, यही बात है. दैट मीन्स द पोजिशन और द ऑर्डर इन विच वी आर पिकिंग अप इज नॉट इंपॉर्टेंट. अपने को लड्डू बर्फी मिलना चाहिए, अपने को इस बात से मतलब नहीं है पहले लड्डू मिले फिर बर्फी मिले, या पहले बर्फी मिले या लड्डू, यानी ऑर्डर. पोजिशनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. जब भी ऐसा केस बनता है जहां पे हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्या काम हो रहा है बाद में क्या काम हो रहा है, उसमें हम कॉम्बिनेशन या चॉइस, उसको हम चॉइस बोलते हैं. चूज करना है, मान लो. आ रही बात समझ में? सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बनता है, हमारे पास 15 खिलाड़ी हैं, उसमें से 11 लोगों की टीम बनानी है. अब कितने तरीके से हम अपनी टीम को चूज कर सकते हैं? जब तक आपको क्रिकेट मैच में खेलने का प्लेइंग 11 में हो, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम पहले बुलाया या बाद में बुलाया, तो हम क्या लगाएंगे? सी. मतलब 15 खिलाड़ी हैं, चूज किया 11 खिलाड़ियों को. अब बोलो नहीं मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया भाई, मैं तो बैट नहीं दूंगा अपना, या मेरे को दूसरे में क्यों बुलाया, फिर प्रॉब्लम है, फिर वो चॉइस नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहले मेरे को बुलाओ, वो कहेगा पहले मेरे को. अब क्या है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 11 में हो तो हो, बस एंड ऑफ द स्टोरी. सो वेन एवर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी पोजिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट टेक आउट those number of things. We apply what we call as choice or combination. लेकिन अगर आप बोलो नहीं जी लड्डू बर्फी खाऊंगा, बर्फी लड्डू खाऊंगा अलग स्वाद आएगा, लड्डू पेड़ा खाऊंगा, पेड़ा लड्डू खाऊंगा अलग मजे आएंगे, बर्फी पेड़ा खाने में और पेड़ा बर्फी खाने में तो बहुत फर्क है जी, तो फर्क पड़ रहा है. अब कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए. समझ में आ रहा है? 6 तरीके. इसका मतलब क्या है, पहले तो आपने 3 में से 2 चुन लिए, 2 आ गए. अब लड्डू बर्फी को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 2 into 1. जैसे 3 लोग हैं, 3 को ABC कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे? 3 फैक्टोरियल वे से. समझ में आ रहा है? अरेंज का है तो ABC ही, लेकिन अरेंजमेंट पोजीशन बदलोगे तो 3 फैक्टोरियल. यानी अगर आपने 2 मिठाई चुन ली और चुनने के बाद आपने कहा जी नहीं आगे पीछे मेरे को तो फर्क पड़ रहा है, यानी कि 2 फैक्टोरियल वे से उसको अरेंज कर सकते हो. अगर हम दोनों काम कर दें, यानी पहले चूज कर लें, 3 में से 2 मिठाई ले ली तो 2 आ गई, उन दोनों को अरेंज कर दिया, ये दोनों काम कर देते हैं, तो ये स्टेप हो जाता है. इसी को हम NPR बोलते हैं. जब 2 स्टेप्स हम साइमल्टेनियसली एक स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को, यानी NCR, N में से R आइटम चूज कर ली और फिर उन R आइटम को अरेंज कर दिया, इन दोनों कंबाइंड प्रोसेस को NPR के नाम से जानते हैं. यानी NPR नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ C आ जाए उसमें हम अरेंजमेंट कर देंगे तो उसको NPR बोलते हैं. तो इट इज नॉट डिफरेंट और ऑपोजिट थिंग, इट इज जस्ट अ स्टेप मोर. NCR के अंदर एक स्टेप और बढ़ा दिया, यानी उसको अरेंज कर दिया, तो हम उसको NPR के नाम से जानते हैं. ठीक है. तो अब कई बार ये बोल सकते हैं भाई इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज 3 आर्टिकल्स आउट ऑफ गिवन 5 आर्टिकल्स. यानी कि कई बार ये बोलते हैं मेरे 5 अलग अलग तरह के फूल हैं, 5 फ्लावर्स, उसमें से मुझे 3 फ्लावर लेके उसकी अरेंजमेंट बनानी है. तो अब डायरेक्टली उसने बोल दिया अरेंजमेंट बनानी है, तो आप 5P3 कर दो, काम खत्म. और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलोगे अच्छा 5 रंग के फूल हैं, मुझे 3 चाहिए, कौन से 3 पता नहीं भाई, 5C3 ले लिए, 3 आ गए. अब जो 3 फ्लावर आ गए उनको हम अलग अलग तरीके से अरेंज कर देंगे, यानी दोनों काम करने हैं, 3 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट सेम आएगा. तो पहले तो आप NCR यानी N आइटम्स में से C चूज कितना R. इसका मतलब जहां पर भी पोजीशन बदलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और पोजीशन चेंज करने से फर्क पड़ रहा है तो उसको हम अरेंजमेंट बोलते हैं या कॉम्बिनेशन लगाते हैं. कैसे होता है अरेंजमेंट, वर्ड क्यों आता है? मान लेते हैं अब अभी घर पे आपकी टीवी यहाँ पे है, ठीक है, बेड यहाँ पे है और सोफा यहाँ पे, ये पोजीशन है घर पे. ठीक है, तो तीनों चीजें हैं. ठीक है, तो आप पढ़ाई नहीं हो रही, आप बारी बारी देखते हो, तो आपने सोचा एक दिन टीवी यहाँ कर देते हैं, ठीक है, बेड यहाँ कर देते हैं और सोफा को यहाँ रहने देते हैं. अब एक दिन आपका कोई फ्रेंड आया तो वो क्या बोलेगा देख के? अरे तूने कार खरीद ली, ऐसा तो नहीं बोलेगा. कमरे में देख के क्या बोलेगा? तूने अरेंजमेंट चेंज कर दी, ये तो नई अरेंजमेंट लग रही है, यही तो बोलेगा ना. यानी पोजीशन, आपने जब चीजों की पोजीशन बोली तो सामने वाला आके बोलता अच्छा अरेंजमेंट बदल दिया आपने, चीजें वही हैं.
टीवी, बेड, सोफा, चीजों में कोई बदलाव नहीं है, उसकी पोजीशन बदलाव करते ही हम अरेंजमेंट का बात करना शुरू कर देते हैं। तो अरेंजमेंट वर्ड का मतलब यही होता है, जब पोजीशन बदलती है तो हम उसको नया मान लेते हैं और उसको हम अरेंजमेंट का नाम दे देते हैं। आ रही बात समझ में? दिस इज अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन। तो जहां चेंज इन पोजीशन की, पोजीशन चेंज होने से, अगर आप बोलो देख पहले ये था तो मेरे पास एक कमरा था, अब ये हो गया, मेरे पास दूसरा कमरा हो गया, तो आप बोलोगे अच्छा, तो ये अरेंजमेंट का खेल है, यानी एनपीआर लगाओगे, अदरवाइज आप एनसीआर लगाओ। तो जब भी आपको कुछ चूज करना होता है, चॉइस होती है, तो आप क्या लगाते हैं? एनसीआर लगाते हैं। और जब उसको चूज करके अरेंज करना होता है तो आप क्या लगाते हैं? एनपीआर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं अपने को एक कमेटी बनानी है, यानी इस क्लासरूम की हमें कमेटी बनानी है, और मान लेते हैं यहाँ पे 10 गर्ल्स हैं और मान लेते हैं 8 बॉयज हैं, और उस कमेटी में 4 गर्ल्स होनी चाहिए और 3 बॉयज होने चाहिए मान लेते हैं। तो हम कमेटी कितने तरीके से बना सकते हैं? तो पहले हमें 10 गर्ल्स में से कोई भी 4 गर्ल्स चूज करनी है। कितने तरीके से कर सकते हो? तो 4 गर्ल्स आ गई। और बॉयज में से कितने बॉयज चूज करने? अब क्या करूं? मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे कमेटी में 7 लोग चाहिए, दोनों काम करने, गर्ल भी चूज करनी है एंड बॉयज भी चूज करने हैं। ये तरीके हो गए। समझ में आ रही बात? इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आती है बात? ओके। अब एनसीआर और एनपीआर का मैं एक्सपेंशन बता देता हूं। अभी तो हमने सिर्फ मतलब समझा है इसका क्या होता है एनसीआर। तो एनसीआर इज एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल का क्या मतलब है? एन फैक्टोरियल ये बनेगा एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ऊपर में आर फैक्टोरियल। आर कट जाएगा तो ये मेरा बनेगा एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज नोन एज एन पी आर। तो ये एनपीआर है, ये एनसीआर है। ठीक है, तो ये रिलेशन भी हमें याद होना चाहिए। एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इज गिवन एज एनपीआर। ठीक है, ये रिजल्ट। एक रिजल्ट ये भी होता है, एनसीआर इज सेम एज एनसी एन माइनस आर। मतलब 5C3 is same as 5C 5 minus 3 which is same as 5C2, यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेम होता है। ये बड़ा देखने में अजीब लगता है, 5C3 is same as 5C2, सब कुछ सेम है, सिर्फ 3 is equal to 2। प्रूव करने में कितना मजा आएगा ना, 5C3 is equal to 5C2, 5 से 5 काटो, 3 से C काटो, 3 is equal to 2, कटता ही है इक्वल टू में लेफ्ट साइड में तो, बट ऐसा है नहीं। इसका मतलब क्या है और ऐसा सेम क्यों आता है, मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ एक बार। समझाने की तो कोशिश ये है कि मान लेते हैं मेरे पास 5 में से 3 आइटमें चूज करी हैं, 5 में से मैंने 3 आइटम उठा ली, तो 2 अपने आप ही हो गई। समझ में आ रहा है? 2 ग्रुप बनाने, मान लो क्वेश्चन आता है 5 हैं, 5 बच्चे हैं, 2 ग्रुप बनाने, एक में 3 एक में 2। अगर मैंने 3 को अलग कर दिया तो 2 का ग्रुप अपने आप बन गया। आपने कहा ना ना गलत बात है, मैं तो 2 का अलग करूंगा। तो 2 का अलग करेगा तो 3 अपने आप बन जाएगा। तो वही ग्रुपिंग है। देखो इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर मेरे पास m+n लोग हैं, ठीक है, m+n लोग हैं और उसको m का ग्रुप बनाना है, तो ये इज सेम एज ये। क्यों? क्योंकि m+n यानी m+n लोग हैं, यानी मान लो 3+2 लोग हैं, यानी एक m का ग्रुप बनाना है, एक n का ग्रुप बनाना है। कितने ग्रुप बना सकते हैं? इसको अपन सॉल्व करेंगे तो m+n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+n माइनस m फैक्टोरियल इनटू में m फैक्टोरियल। m से m कटेगा तो मेरा आएगा m+n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर m+n लोग हैं तो कितने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं? इतने ग्रुप बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब 5 लोग हैं, मान लो 3 का ग्रुप और 2 का ग्रुप बनाना है, मान लो ABCDE है, तो ये ग्रुप बन सकता है। ठीक है, किसी एक को यहां डाल दो, किसी एक को, यानी 5 में से 3 लोगों को चुन लो, या तो ये काम कर लो और 5 में से 2 लोगों को चुन लो।
दोनों सेम आंसर आएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही बनेगा। ये क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2, बात तो बराबर ही है। तो 5 में से 3 का ग्रुप बनाना इस सेम है 5 में से 2 का ग्रुप बनाना, इसीलिए जो रिजल्ट है NCR इज सेम एज NCN माइनस R, ये वाला जो रिजल्ट है ना वो इसका एप्लीकेशन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई 15 लोग हैं मान लो, उसमें एक 3 का, एक 5 का और एक कितने हो गए 8, एक 7 का, ये ग्रुप है। एक 3 लोगों का ग्रुप, एक 5 का ग्रुप, एक 7 का ग्रुप बनाना है। बताओ कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं? तो क्या आंसर क्या होगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, इसी का एक्सपेंशन है। यानी m प्लस n प्लस p लोग हैं मान लो, समझ में आ रहा है? कितने लोग हैं? m प्लस n प्लस p लोग हैं, तो m प्लस n प्लस p लोग हैं, इनका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, इतने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड नंबर ऑफ ग्रुप्स। आ रही बात समझ में? इसमें एक पंगा हो सकता है, अगर ग्रुप सेम हो, ग्रुप सेम का मतलब m इज इक्वल टू n हो जाए। जैसे मान लो m प्लस n लोग थे, तो m प्लस n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इफ m इज इक्वल टू n तो क्या होएगा बताओ 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, ये तब बनेगा जब दोनों ग्रुप की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। क्या मतलब है इस बात का? मान लेते हैं एक ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, 4 लोगों का ग्रुप है, ए बी यहां पे कर दिया, सी डी यहां कर दिया, पॉसिबल है? अच्छा, इसमें मैंने कहा सी डी यहां कर दो, ए बी यहां कर दो, क्या ये नया ग्रुप है या सेम ग्रुप है? इज दिस ग्रुपिंग डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट ग्रुपिंग और सेम ग्रुपिंग? ए बी इट डिपेंड्स, अगर 1 और 2 में डिफरेंस है तो अलग है, अगर 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है तो अलग नहीं। मतलब मैंने कहा जो यहाँ बैठेगा और जो यहाँ, मान लो ये 2 ग्रुप हैं, 2 बच्चे हैं, मैंने कहा यहाँ बैठने वाले को 100 रुपए मिलेंगे, यहाँ बैठने वाले को 200 रुपए मिलेंगे, और तुम दोनों को वहां बिठा दिया, इन दोनों को यहाँ बिठा दिया, फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वहां बैठने पे, और लेकिन वही दोनों इकट्ठे हैं बिल्कुल, तो इसका मतलब फर्क पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो उस केस में ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि जी 100 रुपए मिलेंगे, कहीं बैठ जाओ, तो इन दोनों को यहां बिठा दिया, इन दोनों को यहां बिठा दिया, कोई फर्क पड़ने वाला है? सेम ग्रुप माना जाएगा। उस केस में मेरे फॉर्मूले में जो चेंज आएगा वो ये आएगा, चूंकि 2 लोग हैं ना, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हेन द ग्रुप आइडेंटिटी इज सेम, ये कब लगेगा? व्हेन ग्रुप आई इज डिफरेंट। आ रही बात समझ में? ये ग्रुप का मतलब समझ में आ रहा है? ये तभी फर्क पड़ेगा जब इक्वल हो जाएगा। मान लो 3 और 2 होते फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम 3 हो, तीनों को यहां कर दिया, इनको यहां कर दिया, इसलिए अलग ग्रुप नजर आ रहा है मेरे को। तो अगर ग्रुप की आइडेंटिटी सेम है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे मान लो 3 का ग्रुप बना रहे थे, मान लो m m m, 3 लोग हैं, फिर क्या करना पड़ता? यहां पे बनता 3m फैक्टोरियल और यहां बनता m फैक्टोरियल का होल क्यूब। ठीक है, ये कब है? डिफरेंट आइडेंटिटी। ठीक है, और सेम आइडेंटिटी में क्या होता? सब कुछ सेम रहता, हमें डिवाइड करना पड़ता किससे? 3 फैक्टोरियल से, दैट्स ऑल। ये डिफरेंस है, ये इसका एप्लीकेशन है कॉम्बिनेशन का। बोलिए, यहां तक समझ में आ रहा है? एक बार ऊपर रजनीश को बुलाना, वो कह रहा था उससे कुछ बात करनी। हाँ जी, यहां तक समझ में आई सभी को ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बचा हुआ हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कॉम्बिनेशन परमुटेशन की और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, बट फंडामेंटली पीएनसी का यही डिफरेंस है, चूजिंग एंड अरेंजिंग में इश्यू है बस।
ठीक है, यस सर। चलो अभी आपकी एक और क्लास है क्या आज? शेड्यूल में तो थी सर LR की, अब अच्छा हाँ, तो है शेड्यूल में थी तो फिर होएगी, ठीक है। ठीक है, पानीपत स्टूडेंट्स कैन लीव नाउ। ठीक है, रेस्ट कैन स्टिक अराउंड, या फिर आई विल एंड दिस, यू विल गेट अ न्यू लिंक। ठीक है, चलिए, दैट शुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड देन, थैंक यू वेरी मच। सर रजनी सर नहीं आने वाले थे। हाँ अच्छा, वो उनको ऑनलाइन भी डिस्कस कर आ रहे हैं, चलो एक मिनट वेट करो। अच्छा, कल आपकी क्लास है क्या? कल छुट्टी है? कल किसकी है? कल एक ही क्लास है ना, 2 to 4। ऑनलाइन भी इंटरेक्ट करना था बच्चों से कुछ? बस ठीक, ठीक है, ग्रुप में आ गया बच्चा मैसेज आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, फिर अभी दूसरा लिंक मिल जाएगा आपको दूसरी क्लास के लिए। ठीक, हाँ ले जाएंगे, कोई बात। हाँ जी, आप लोगों को जो पहले बैटरी